ذرا سوچو وہ لمحہ کیسا ہوگا جب سب لوگ انکار کر رہے تھے، مگر ایک شخص تھا جو پورے یقین سے کہہ رہا تھا کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بالکل سچ ہے۔ یہ کہانی ہے اس ساتھی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف خوشی کے لمحوں میں نہیں بلکہ غم، ہجر اور خطروں کے درمیان بھی سایہ بن کر رہے۔ جب سب ڈر رہے تھے تو یہ ان کے ساتھ ہمارے سور کے اندھیروں میں تھے، جب سب نے منہ موڑ لیا تو یہ سراج منیر کے قدم چوم رہے تھے، جنہیں بعثت سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کا شرف حاصل ہے، جنہیں 23 سالہ پورے دور نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کا شرف حاصل رہا، جنہیں تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا فخر حاصل رہا، جنہیں قرآن کریم کے ذریعے صحابیت کی ڈگری حاصل ہے، جنہیں وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال جیسے غمناک، المناک موقع پر امت کو سنبھالنے اور اختلاف سے بچانے کا مقام حاصل ہے، جنہیں زکوٰۃ اور ختم نبوت کا انکار اور ارتداد جیسے خطرناک فتنوں کا سر کچلنے کی سعادت حاصل ہے، جنہیں السابقون الاولون، عشرہ مبشرہ اور خلفاء راشدین میں سر فہرست ہونے کا مرتبہ حاصل ہے۔ وہ دوست جن کے کاندھوں پر نبوت کا بھروسہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ یہ صرف ایک صحابی نہیں کہ اسلام کا وہ چیپٹر ہے جہاں محبت، وفاداری اور قربانی کا سب سے بلند سبق لکھا گیا ہے۔ سواگت ہے آپ کا صحابہ سیریز کی پہلی قسم میں، جہاں ہم ذکر کریں گے اس شخصیت کا جن کے ایمان پر خود حضرت جبریل بھی فخر کرتے ہیں، اور وہ ذات ہے جانشین پیغمبر، افضل البشر بعد الانبیاء فی الخلق، عاشق اکبر، یار غار و مزار مصطفیٰ، خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن تین بن مرہ بن کعب ہے۔ مرہ بن کعب تک آپ کے سلسلہ نسب میں کل 6 واسطے ہیں۔ مرہ بن کعب پر جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ عربی زبان میں البکر جوان اونٹوں کہتے ہیں، جس کے پاس اونٹوں کی کثرت ہوتی ہے یا جو اونٹوں کی دیکھ بھال اور دیگر معاملات میں بہت ماہر ہوتا ہے، عرب لوگ اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہی بہت بڑا اور مالدار تھا، اس اونٹوں کے تمام معاملات بھی آپ مہارت رکھتے تھے، اس لیے بھی آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی زبان میں ابو کا معنی ہے والا اور بکر کے معنی ہے اولیت کی، تو ابو بکر کے معنی اولیت والا ہے۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے، مال خرچ کرنے، جان لٹانے، الغرض امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر معاملے میں اولیت رکھتے ہیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر یعنی اولیت والا کہا گیا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ کنیہ بھی ابی بکر لابتکارہ الخصال الحمیدہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر اس لیے ہے کہ آپ شروع ہی سے خصائل حمیدہ رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 لقب زیادہ مشہور ہیں، پہلا عتیق، دوسرا صدیق۔ عتیق پہلا لقب ہے، اسلام میں سب سے پہلے آپ کو اسی لقب سے ملقب کیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا انت عتیق من النار، تم جہنم سے آزاد ہو، تب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عتیق ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ صحن میں تشریف فرما تھے، اچانک میرے والد گرامی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلينظر الى ابی بکر، جو دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب صدیق کے حوالے سے حضرت سیدہ حبشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یا ابا بکر ان اللہ قد سماک صدیق، اے ابو بکر بے شک اللہ رب العزت نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعے کو بیان فرمایا۔ مشرکین دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا
अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचे और कहने लगे, हल्लका इला साहिबिक यज़मु असरा बिही लैलता इला बैतुल मुक़द्दस, क्या आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं जो आपके दोस्त ने कही है कि हमने रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर की। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, क्या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई ये बयान फरमाया? इन्होंने कहा, जी हाँ। आप रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, लइन कान क़ाल ज़ालिक लतसद्दक़ा, अगर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है तो यकीनन सच फरमाया है और मैं उनकी इस बात की बिला झिझक तस्दीक करता हूँ। उन्होंने कहा कि आप उस हैरान कुन बात की भी तस्दीक करते हैं कि वो आज रात बैतुल मुक़द्दस गए और सुबह होने से पहले वापस भी आ गए। आप रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, नाम इन्नी लउसद्दिक़ुहु फ़ीमा हुवा अबअदु मिन ज़ालिक उसद्दिक़ु बिख़बरिस समाई फ़ी ग़दवतिन औ रौहतिन, जी हाँ, मैं तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसमानी खबरों की भी सुबह शाम तस्दीक करता हूँ और यकीनन वो तो इस बात से भी ज़्यादा हैरान हुआ और ताज्जुब वाली बात है। इस वाक़े के बाद आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिद्दीक़ के नाम से मशहूर हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद मोहतरम का नाम उस्मान बिन आमिर बिन आम्र बिन काब बिन साद बिन तैम बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर क़रशी तैमी है। कुन्यत अबू कहाफ़ा है। आप फ़तेह मक्का के और इस्लाम लाए और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात के बाद भी ज़िंदा रहे और उनके वारिस हुए। आपने खिलाफत फारूकी में वफ़ात पाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा मोहतरमा का नाम सलमा बिन्त सखर बिन आमिर बिन काब बिन साद बिन तैम बिन मुर्रा है। कुन्यत उम्मुल खैर है। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चचा की बेटी। इब्तिदाई इस्लाम में ही हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके मुर्शद अब्बा इस्लाम हो गई थी। मदीना मुनव्वरा में जुमादे सानी 13 हिजरी में वफ़ात पाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवियों की तादाद 4 है। आपने 2 निकाह मक्का मुकर्रमा में किए और 2 निकाह मदीना मुनव्वरा भी। इन अज़वाज से आपके 3 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई, जिनकी तफसील ये है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पहला निकाह कुरैश के मशहूर शख्स अब्दुल उज़्ज़ा की बेटी उम्मे क़तीला से हुआ। इनसे आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक बड़े बेटे हज़रत अब्दुल्ला और एक बेटी हज़रत सैयदा अस्मा पैदा हुई। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दूसरा निकाह उम्मे रूमान यानी ज़ैनब बिन्त आमिर बिन उवैमिर से हुआ। इनसे एक बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान और एक बेटी हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पैदा हुई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने तीसरा निकाह हबीबा बिन्त खारिजा बिन ज़ैद से किया। इनसे आप रज़ियल्लाहु तआला की सबसे छोटी बेटी हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पैदा हुई। आप रज़ियल्लाहु तआला ने चौथा निकाह सैयदा अस्मा बिन उमैस से किया। ये हज़रत सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ौजा थी। जंग मुता के दौरान शाम में हज़रत सैयदना जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उनसे निकाह कर लिया। हज्जतुल वदा के मौके पर उनसे आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुए। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपसे निकाह कर लिया। इस तरह आपके बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर की परवरिश हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घराने को एक ऐसा शरफ हासिल है जो इस घराने के अलावा किसी और मुसलमान घराने को हासिल नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद भी सहाबी हैं। उनके वालिद हज़रत अबू कहाफ़ा भी सहाबी। आपके तीनों बेटे हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुर्रहमान और हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर भी सहाबी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पोते भी सहाबी। आपकी बेटियाँ हज़रत आयशा, हज़रत सैयदा अस्मा, हज़रत उम्मे कुलसूम बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना भी सहाबिया और आपके नवासे भी सहाबी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से लेकर अपनी वफ़ात तक कभी भी अहले बैत की खिदमत में कोई कमी ना आने दी। आपके अहले बैत से ये खुसूसी मोहब्बत आपकी औलाद में मुंतकिल होती रही और आपने अहले बैत से एक मजबूत रिश्तेदारी कायम फरमाई, जिसकी तफसील ये है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी लाडली शहज़ादी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह 8 बिसत नबी शव्वाल मुकर्रम में अपने महबूब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सैयदा मैमूना बिन्त हारिस और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत अस्मा बिन्त उमैस, ये दोनों वालिदा की तरफ से सगी बहनें थी। उनकी वालिदा मोहतरमा का नाम हिंद बिन्त औफ है और उन्हें खौला बिन्त औफ भी कहा जाता है। यूँ इस मुबारक रिश्ते से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक हम जुल्फ़ यानी साड़ू हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के नवासे यानी हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भतीजे भी, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दादी हज़रत सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के नवासे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दामाद भी है। हज़रत इमाम हसन की बेटी हज़रत सैयदा उम्मुल हसन
हज़रत अब्दुल्ला की सौजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के एक बेटे हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर हैं, जिनकी वालिदा हज़रत अस्मा बिन्त उमैस है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के विसाल के बाद उनसे हज़रत अली मुर्तज़ा ने निकाह फरमाया। चुनांचे इस लिहाज से हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर हज़रत अली मुर्तज़ा के सौतेले बेटे हुए और हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आपके अल्लाती भाई यानी पाप शरीक भाई हुए। हज़रत अली के साहबजादे हज़रत इमाम हुसैन की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत शहर बानो और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर की ज़ौजा दोनों आपस में सगी बहन थी। हज़रत अली मुर्तज़ा के दौरे खिलाफत में हज़रत हरीस बिन जाबिर जोफ़ी ने शाह ईरान से जर्द भी शहर यार की 2 बेटियां हज़रत अली की खिदमत में भेजी। आपने उनमें से बड़ी बेटी हज़रत शहर बानो का निकाह अपने बेटे हज़रत इमाम हुसैन से किया। छोटी बेटी का निकाह हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर से फरमा दिया। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की वालिदा मोहतरमा का इसमें गिरामी हज़रत उम्मे फ़रवा बिन्त क़ासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक़ है, जबकि आपके वालिद गिरामी का इसमें मुबारक हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर बिन अली ज़ैनुल आबिदीन हुसैन बिन अली मुर्तज़ा है। यूँ आपका सिलसिला नसब वालिदा की तरफ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और वालिद की तरफ से हज़रत अली मुर्तज़ा से चामिन का है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की पोती हज़रत हफ्सा बिन्त अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर हज़रत इमाम हुसैन की ज़ौजा है। यूँ हज़रत इमाम हुसैन इस हवाले से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दामाद मुहतरम हुए। आम हालात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु निहायत ही नरम मिजाज के, ऐसा मालूम होता था कि सख्ती और गुस्से से तो आशना ही नहीं है। धीमे अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता बात करते, मगर इस्लाम के मामले में इंतहाई गैरतमंद और बहुत सख्त थे। मदीने मुनव्वरा के यहूदियों और मुनाफिकों के तंज़िया बातों पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु शदीद गुस्से में आते ही थे, मगर अगर कभी अपने करीबी रिश्तेदारों की तरफ से भी उन्हें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेअदबी का हल्का सा भी शाइबा होता तो उस पर सख्त रद्द अमल का इजहार फरमाते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद अबू कहाफ़ा ने इस्लाम कबूल करने से पहले एक बार हुज़ूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ने नाज़िबा कलिमात कह दिए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें इतने ज़ोर से धक्का दिया कि वो दूर जा गिरे। बाद में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा सुनाया तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर, क्या वाकई तुमने ऐसा किया? अर्ज़ किया, जी हाँ। फरमाया, आइंदा ऐसा न करना। अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उस वक्त मेरे पास सवार होती तो मैं उनका सर कलम कर देता। उस वक्त सूरह मुजादला की आयत नंबर 22 आपके हक में नाज़िल हुई। ग़ज़वे बद्र में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले मुशरिकीन के साथ इस्लाम के खिलाफ जंगें लड़ते थी। जब वो इस्लाम ले आए तो एक रोज़ वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहने लगे, अप्पा जान, मैदान बद्र में एक मौके पर आप मेरी तलवार की ज़द में थे, लेकिन मैंने आपको पाप समझकर छोड़ दिया। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु गैरत ईमानी से भरपूर जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, लाकिन्नका लौ अहदफ़तली लम अनसरिफ़ अन्का, लेकिन अगर तू मेरा हदफ बनता तो मैं तुझसे एराज़ न करता। यानी लाए बेटे, उस दिन तुमने मुझे इसलिए छोड़ दिया कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे मेरी तलवार की ज़द में आते तो मैं कभी न देखता कि तुम मेरे बेटे हो, बल्कि उस वक्त तुम्हें दुश्मन रसूल समझकर तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हर मामला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर होता था और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस मामले में अपने वालिदैन व औलाद वगैरह का भी लिहाज न फरमाते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैत खिलाफत के दूसरे रोज़ को चादरें लेकर बाजार जा रहे थे। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरियाफ़्त किया कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? फरमाया, बदर से तिजारत बाजार जा रहा हूँ। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि अब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये काम छोड़ दें कि अब आप लोगों के अमीर यानी खलीफा हैं। ये सुनकर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर मैं ये काम छोड़ दूँ तो फिर मेरे अहलो अयाल कहाँ से खाएंगे? हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस चलें। अब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये अखराजात हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तय करेंगे। फिर ये दोनों हज़रात हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास तशरीफ़ लाए और उनसे हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके अहलो अयाल के वास्ते एक औसत दर्जे के मुहाजिर की खुराक का अंदाज़ा करके रोज़ाना की खुराक और ठंडी और गर्मी के मौसम का लिबास मुकर्रर कर दीजिए, लेकिन इस तरह के जब फट जाए तो वापस करके उसके बदले नया दे दिया जाए। चुनांचे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए आधी बकरी का गोश्त, लिबास और रोटी मुकर्रर कर दी। इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी वफ़ात के वक्त उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, देखो ये ऊँटनी जिसका हम दूध पीते हैं और ये बड़ा प्याला जिसमें हम खाते पीते हैं और ये चादर जो मैं ओढ़े हुए हूँ, हम इनसे उसी वक्त तक नफ़ा उठा सकते हैं जब तक मैं मुसलमानों के उमूर खिलाफत अंजाम देता रहूँगा।
जिस वक्त मैं वफात पा जाऊं तो ये तमाम सामान हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे देना। चुनांचे जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये तमाम चीज़ें हसद वसीयत वापस कर दी। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने ये चीज़ें वापस पाकर फरमाया, ए अबू बकर, अल्लाह आप पर रहम फरमाए कि आपने अपने बाद में आने वालों को थका दिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुसूसी अहमियत और फजीलत हासिल थी। कुरान मजीद के तकरीबन 32 आयत आपके मुतालिक हैं जिनसे आपकी शान पहचान होता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह तआला के बारे में फरमाया कि मुझ पर जिसके जितने एहसानात थे मैंने सबके एहसान चुका दिए, मगर अबू बकर के मुझ पर वो एहसानात है जिनका बदला अल्लाह तबारक तआला रोज़े क़यामत में अता फरमाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के क़बूल इस्लाम के बाद के हालात का अगर जायज़ा लिया जाए तो गैरत व हमियत और शुजाअत जैसे आली और साफ से आपका दामन भरा हुआ नजर आता है। आपने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और आपकी दावत पर हज़रत उस्मान, हज़रत अबू उबैदा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे जलील क़द्र सहाबा हल्का बगोश इस्लाम हुए। आपने कबूल इस्लाम के बाद जान माल सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। दुश्मन इस्लाम के चंगुल में फंसे मज़लूम मुसलमान मौज़िन रसूल हज़रत बिलाल बिन अबी रबाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुनैरा, आमिर बिन फुहैरा, उम्मे अबीस वगैरह मुस्लिम गुलामों को मुशरिकीन के कैद से निजात दिलाने के लिए फिदिया अदा किया। आपने अपने सारे घराने को खिदमत इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के लिए वक़्फ कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अग्न में अपनी लफ्ते जिगर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की सूरह नूर की 18 आयत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लफ्ते जिगर की फजीलत को बयान किया। सफ़र हिजरत में आपने दिल जमाई के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से इशाअत इस्लाम की खातिर सदका देने की इल्तिजा की तो आपने सबसे ज्यादा माल पेश किया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुत्तफ़िक़ा तौर पर खलीफतुर रसूल और जानशीन बनाया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बिला फ़स्ल बनने के बाद अपने पहले ही खुद में इरशाद फरमाया, ऐ लोगों मैं तुम्हारा हाकिम बनाया गया हूँ, लेकिन तुम में से बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं नेक काम करूँ तो उससे मेरी मदद करो और अगर मैं बुरा काम करूँ तो मुझे टोको। सिद्क़, अमानत है और किस्म ख़यानत। तुम्हारा कमज़ोर शख्स मेरे नज़दीक कवी है जब तक मैं उसे उसका हक न दिला दूँ, और तुम्हारा कवी आदमी मेरे नज़दीक कमज़ोर है जबकि उसके ज़िम्मे जो हक है वो उससे न ले दूँ। जो कौम अल्लाह तबारक तआला के रस्ते में जिहाद तर कर देती है उस पर अल्लाह तबारक तआला ज़िल्लत व ख़ारी मुसल्लत कर देता है, और अगर किसी कौम में बेहाई फैल जाती है तो अल्लाह तबारक तआला उस पर बलाएँ और अज़ाब आम कर देता है। खलीफा बिला फ़स्ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इंतहाई मुश्किल हालात में निज़ामी खिलाफत को संभाला। उस वक्त मसाइब मुश्किलात ने चारों तरफ से घेर रखा था। फितने इर्तिदाद, झूठे मुद्दइया नबूवत, मानिईन ज़कात के फितने ने तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर ली थी। इस्लाम और मरकज़ इस्लाम ख़तरे में दिखाई देने लगा। इन हालात में खलीफा बिला फ़स्ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ जिहाद करते हुए उन तमाम फितनों का खात्मा किया, और इसके साथ साथ उस वक्त की कुफ्र की दो बड़ी ताकतें रूम और फारिस को भी शिकस्त फाश दी। इस्लाम की हुदूद फैलती चली गई और हर तरफ अमन सुकून और खिलाफत राशिदा के मुक़द्दस निज़ाम के समरात व बरक़ात नज़र आने लगी। जंग यमामा में कसीर तादाद में हुफ़ाज़ कुरान की शहादत के बाद आपने हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मशवरे से कुरान करीम की जमा व तदवीन का अजीम कारनामा अंजाम दिया। दरबार रिसालत के इस प्यारे चमकते दमक के सितारे ने 22 जुमादुल उखरा 13 हिजरी बमुताबिक 23 अगस्त 634 ईस्वी पीर और मंगल के दरमियानी रात मगरिब और इशा के दरमियान दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच फरमाया। वक्त विसाल आपकी उम्र 63 साल की, जबकि ज़बान मुबारक के आखिरी कलमात ये थे, ऐ परवरदिगार मुझे इस काम पर मौत अता फरमा और मुझे नेक लोगों के साथ मिला दे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नवाए जनाजा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पढ़ाई। वसीयत के मुताबिक आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जसद मुबारक को रोज़े रसूल के सामने लाया गया और अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर आपसे इजाज़त के तलबगार हैं। रोज़े मुबारक का दरवाज़ा खुल गया और अंदर से आवाज़ आई, अदखिलुल हबीब इला हबीबिही, यानी महबूब को उसके महबूब से मिला दो। चुनांचे आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहिए मुबारक में सुबुर्द रहमत कर दिया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी और अपने दौरे खिलाफत में पुरखतर हालात के बावजूद जिसके बाकी शुजाअत, बहादुरी और पुख्ता आज़म का मुज़ाहरा किया है, तारीख़ में उसकी मिसाल ढूंढने पर भी नहीं मिलती। यकीनन ये जानिशीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरी शुजाअत की, जिसके नतीजे में दीन मुस्तफ़ा को वो उरूज मिला जिसका ऐलान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक से कर गए थे। आज जबकि उम्मत मुस्लिमा चारों तरफ से साजिशों का शिकार होकर कुफ़ार के सामने मगरूरियत की हालत में है, ज़रूरत इस अम्र की है कि उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान
علماء اور عوام ان سب حالات کا مقابلہ سیرت صدیق اکبر کی روشنی میں اسی ایمانی بصیرت و شجاعت کے ساتھ کریں جیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مکمل زندگی میں بالعموم، اور حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی، منکرین زکوٰۃ اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی سرکوبی جیسے اہم امور کو بالخصوص حفظ جا بنایا اور تمام نام نہاد اسلام دشمن طاقتوں کو مغلوب کر کے محمدی پرچم کو سر بلند کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے مستقبل میں پرعزم ہو کر اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی جاننا چاہتے ہیں تو مجھے سبسکرائب کریں، اس لیے کہ میں نے صحابہ سیریز شروع کی ہے جس میں ایک ایک صحابی کی زندگی اور ان کی قربانیوں اور ان کے حالات کی پوری جانکاری ہم ویڈیو کے شکل میں دیں گے۔ یہ پہلی قسط خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر مشتمل کی۔ اب عدل انصاف کے پیکر جنہیں شیطان بھی دیکھ کر بھاگتا ہے، خلیفہ دو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر اگلی ویڈیو آئے گی، تو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔